सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Today we will study about functioning of Indian democracy part 2. Clear? In this part 2 we will study about characteristics of federal form of government. Clear? Characteristics of federal form of government, it means federal form of government की विशेषताएं. Clear? Dear students, the country in which government runs on two levels, state level and central level, and the powers of the governments at the center and at the states are divided in the constitution, are mentioned in the constitution, and such type of गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस तरह की गवर्नमेंट जिसमें टू लेवल्स पर गवर्नमेंट रन की जाए, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. क्लियर? और उन गवर्नमेंट की पावर्स, वर्क्स और उनके जुरिसडिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो. क्लियर? उनकी पावर का जो सोर्स होता है वो क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और उस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स, जुरिसडिक्शन और वर्क्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स के मेंशन हो, ताकि उनमें कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो. क्लियर? ऐसी गवर्नमेंट को या ऐसे गवर्नमेंट के ऐसे फॉर्म को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? टुडे वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव अडॉप्टेड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स do work for the welfare of the people. Clear? And utmost importance is given to the welfare of the people and their basic amenities. Clear? So we have adopted the federal form of government. Clear? Federal form of government, it is a provision in our constitution, and this system is taken from the Canadian constitution. Clear? India is a vast country. That is why only one government is not enough for the country. Clear? And if there will be only one government, then it will be centralization of power. But in federal form of government, it is decentralization of power. It means power is not remain in the hand of one body. Despite that, it is divided between two government bodies or two governments. Clear? Such type of government is called federal form of government. I think this is clear now. Okay. Now we will talk about characteristics of form of government. The first characteristics is dual form of government. Dual form of government means दोहरी सरकार. It means there will be two governments. Clear? One for a state and one for the whole country. क्लियर? एक सिर्फ एक स्टेट के लिए होगी एक गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री के लिए. इट मींस यूनिटरी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मिक्सअप. क्लियर? यूनिटरी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. क्लियर? प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर? ड्यूल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट विल बी रन ऑन द टू लेवल, सेंटर एंड स्टेट. क्लियर? देयर विल बी an executive body at central level. Clear? In that executive body there is a president, prime minister and council of ministers. There is also a legislature which has two houses, upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha, lower house is called Lok Sabha. And if we discuss it in English, then Lok Sabha is called House of the People, in which the representatives chosen by the people of the country sit in that house and makes law for the country. Clear? And Rajya Sabha is called Council of States. Clear? So there are two houses. Clear? Which combines a union legislature, which is called Parliament. जिसको हम क्या बोलते हैं? Parliament बोलते हैं. Clear?
इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल के बारे में। क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है जो कि स्टेट के लिए लॉ फ्रेमिंग का वर्क करती है। तो इस तरीके से 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट रन होती है और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। क्लियर? क्या बोला जाता है इस तरह के सिस्टम को? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? देन डिवीजन ऑफ पावर। It is really important to divide the power between these two governments. Clear? And for division of the power, a special provision in our constitution is mentioned by the framers of our constitution, so that there will be no dispute in future between the both the government, central government and state government. That is why in our constitution there are 3 types of list mentioned. How many types of list mentioned? 3 types of list mentioned in our constitution, and these lists are union list, state list and concurrent list. Clear? This list defines the power of different governments. Clear? So let's discuss about these lists. Union list. Union means central list. There are total 97 subjects of national interest are contained in the union list. यानी कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिनमें राष्ट्र का हित छुपा हुआ है, राष्ट्र हित से संबंधित 97 सब्जेक्ट्स कंटेंट है, यानी कि शामिल है किसमें? यूनियन लिस्ट में। टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? 97 सब्जेक्ट्स है, और ये 97 सब्जेक्ट्स है नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व है? डिफेंस यानी कि रक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशी मामले, क्लियर? डिफेंस फोर्सेस यानी कि सैन्य ताकत, सैन्य दल, फाइनेंस यानी कि वित्त, कम्युनिकेशन मींस संचार के साधन, एंड रेलवेज। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट 97 सब्जेक्ट्स किसमें शामिल है? यूनियन लिस्ट में। अब इसको यूनियन लिस्ट को एक और तरीके से समझते हैं। इट मींस यूनियन लिस्ट के जो 97 सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, इन 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मींस पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज ऑन दिस 97 सब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो ही इन 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या बना सकती है? लॉज फ्रेम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉ फ्रेम नहीं कर सकती। क्लियर? तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, शामिल किए गए हैं, इन 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वो ही सिर्फ इन पर लॉ फ्रेम कर सकती है। अदरवाइज कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर इन 97 सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकती है, कानून नहीं बना सकती। बिकॉज इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसको देता है? यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? Now let's talk about the state list. Clear? There are total 62 subjects of regional importance are involved in the state list. Clear? कितने सब्जेक्ट्स है? 62 सब्जेक्ट्स। टोटल 62 सब्जेक्ट्स जो कि रीजनल यानी कि क्षेत्रीय महत्वपूर्णता के 62 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि जस्टिस यानी कि न्याय, पुलिस, क्लियर, देन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा आर इन द स्टेट लिस्ट। ऐसे 62 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इन्वॉल्व है। क्लियर? और इन 62 सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ फ्रेम कर सकती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ फ्रेम नहीं कर सकती। इट मींस those subjects which are
contained in the union list, only union government can frame laws on that subjects, and those subjects which are involved in the state list, on these subjects only state legislature can frame the laws. Clear? यानी कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व है उन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली उनके ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, कीप इट इन योर माइंड दैट देयर आर टोटल 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट and 62 subject in the state list. Okay, now we will talk about the third list, the concurrent list. Clear? Concurrent list में originally 47 जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग concurrent list में originally 47 subjects थे. कितने subjects थे? 47. But after the 42nd amendment which was made in the year 1976, 4 subjects were added to it, and after that one more subject is added to it. Clear? So total after 42nd amendment total 5 subjects were added to it. So that is why presently there are 52 subjects in the concurrent list. How many subjects? 52 subjects in the concurrent list. Clear? And originally there were 47 subjects. Clear? In this list subjects like marriages, divorce, trusts, trustees, clear, such subjects, and last one is forest and wildlife protection. These subjects are included in the concurrent list, but there is a speciality of concurrent list that on the subjects of concurrent list both the governments, central government as well as state governments can frame the laws. It means central legislature and state legislative assembly both can frame the laws which is mentioned in the concurrent list. It means these are the combined subjects of central and state governments. Both the governments can frame the laws on these subjects. But keep it in your mind that for same subject one law is framed by state government, and for the same subject the law is framed by central government. Then there will be no contradiction in it. The law which is made by central government will be followed in the states. Clear? अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही एडॉप्ट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, इफेक्ट में लाया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट में भी और पूरी कंट्री में. इज दैट क्लियर? द law made by the central government, it means parliament, will be given priority in all the states. Clear? उसको हर स्टेट में प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अलग से लॉ बनाया. फॉर एग्जांपल किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो लॉ फ्रेम किया है कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर? मैरिज सब्जेक्ट के ऊपर, कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके 3 इयर्स बाद ही डिवोर्स लिया जा सकता है. बट स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, लॉ बनाया है, और इसी सब्जेक्ट के ऊपर मान लो उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने भी समय बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी सब्जेक्ट के ऊपर, मैरिज के ऊपर रूल बनाया और उन्होंने बताया है कि डाइवोर्स 3 साल बाद नहीं 4 साल बाद होगा, तो उस स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही फॉलो किया जाएगा. यानी कि वहां पे भी जो डाइवोर्स का टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स से क्या हो जाएगा? 4 इयर्स हो जाएगा. इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लॉज को फॉलो किया जाएगा. क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो. क्लियर? नाउ रेसिडुअल पावर्स. मान लीजिए ऐसा कोई सा सब्जेक्ट है या इन फ्यूचर ऐसा कोई सा सब्जेक्ट सामने आए जो हमारी तीनों ही लिस्ट में नहीं, न यूनियन लिस्ट में है, न स्टेट लिस्ट में है और न ही कॉन्करेंट लिस्ट में. तो ऐसी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट के ऊपर जो कि तीनों लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं है
तो ऐसी सिचुएशन में उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ फ्रेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ फ्रेम करने का राइट किसको है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट बचता है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का जो वर्क है, लॉ बनाने का जो राइट है, वो किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो सब्जेक्ट डायरेक्टली कहां चला जाएगा? यूनियन लिस्ट में चला जाएगा। क्लियर? किसमें चला जाएगा? यूनियन लिस्ट में। क्लियर? इंसानों की जरूरतें चेंज होती रहती है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल आज से पहले या आज से करीब 20 साल पहले या 25 साल पहले साइबर सिक्योरिटी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। क्लियर? क्योंकि पहले कंप्यूटर ही नहीं थे तो उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आया ही नहीं। लेकिन आज है तो ये क्या है? नया सब्जेक्ट आया। नया सब्जेक्ट आया तो ये किसमें गया? रेसिडुअल पावर्स में गया। रेसिडुअल पावर्स जो भी ऐसे सब्जेक्ट जो है तीनों लिस्ट में ना हो तो वो सब्जेक्ट डायरेक्टली कहां चला जाएगा? यूनियन लिस्ट में चला जाएगा। यानी कि अधिकार किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सुप्रीमेसी एंड रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन and the powers of both the governments are well defined in the constitution। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिफिकल्ट रखा गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या रहे? बनी हुई रहे। क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है जितना कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न होना और रिजिड होना जरूरी है। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रखा गया है ताकि इजीली कोई भी अमेंडमेंट ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? The fourth one is supremacy of judiciary. Clear? If any dispute arises between central and state governments or more than one state governments, clear? Between more than one state governments, या तो दो राज्य सरकारों के बीच कोई मतभेद हो या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई मतभेद हो, तो मतभेद कौन सुलझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन सुलझा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। Because Supreme Court is the only authority to listen the matters of the different state governments and central governments. Clear? सिर्फ इसकी अथॉरिटी किसको है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक भी है और इसके साथ ही इंटरप्रेटर भी है, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का काम भी किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो जो हमारी जुडिशरी है उसको सुप्रीम बनाना होगा, सर्वोपरि रखना होगा, सभी गवर्नमेंट से ऊपर रखना होगा। क्लियर? इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी की जो हियरार्की है उसमें अपेक्स पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर्स है। अगर पार्लियामेंट ने कोई सा लॉ फ्रेम किया है और उस लॉ का कोई भी प्रोविजन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो ऐसी सिचुएशन में जो जुडिशरी है वो उस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इट मींस उस कानून को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है जिस कानून में हमारे संविधान का उल्लंघन हो। क्लियर? द लॉ व्हिच विल वायलेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड नल और वॉइड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। तो इसी वजह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या बनाया रखा जाता है? जुडिशरी को सुप्रीम बनाया जाता है ताकि कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो या कोई भी ऐसा लॉ अगर फ्रेम किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स ऑफ जुडिशरी आर मेंशन्ड। इन सच केस जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर लॉ नल और वॉइड। ओके, एंड द लास्ट वन इज टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। क्लियर? In federal form of government, it is necessary that representation of the central government as well as representation of the states. Clear? दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन क्या है? जरूरी है। किसमें? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसी वजह से जो यूनियन लेजिस्लेचर है
वो 2 हाउसेस से कंप्राइज होकर बनती है। क्लियर? एज आई टोल्ड यू, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है, वहीं लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। और वहीं राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, राज्यसभा होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। सो it is necessary for federal form of the government representation of states and center. That is why 2 houses of the legislature, one will represent the states and one will represent the center. Clear? So these are the characteristics of the federal form of government. Clear? For remaining chapter, keep watching our YouTube channel. Thank you very much for listening to me. Have a good day and study hard. Thank you very much.